Diwali. A warm welcome to all of you, friends. Can you hear me? Dear friends from media, आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है? वो लोग अनम्यूटेड है कोई? आ रही है सर, आ रही है. Wonderful. 1 बज गया है. I'm just waiting for 2-3-4 minutes for some more colleagues to join. I just got few messages. So we'll hold for 2-3 minutes. Kindly bear with me. Chairman sir, we are ready. 2-3 मिनट में we'll get chairman sir also on board. कितने हुए? Okay. Very good afternoon to all of you. Very good afternoon to Chairman sir. Sir, thank you for coming and taking your time out. I know you had been keeping very busy. कल भी you almost did the press conference कल भी, but you were caught up परसों भी. But somehow sir ने आज time निकाल लिया. I'm grateful to you. And good afternoon, my friends. So without wasting much time, I'll request Chairman sir to kindly take us through a small journey of what new things we are doing and other interest to you. Sir, kindly, sir. Thank you, Mr. Narayan, and good afternoon to all the friends from media. It's always pleasure talking to friends from media, and thank you very much for joining us at such a short notice. So, I just wanted to brief you that the growth in freight continues. And in the month of November, Indian Railway has done 110 million ton as compared to 101 million ton last November 2019, and this is the highest freight loading in the current year. Last month it was 108 million ton, and this month it is 110 million ton. This month it is 9% more than the November previous year. Now I just wanted to mention to you that
having done 15% in September and October as compared to last year. This year is 9%, and this tells a different story. I just wanted to mention. Last year Diwali was in October. This year Diwali was in November. In spite of Diwali, as we all know, during Diwali and Chhath, and this month especially, there was a cyclone in Tamil Nadu. So in spite of all these challenges, Indian Railway has done the freight loading of 110 million ton, which is the highest in this year, and this indicates that the growth in freight continues, and this simply indicates that there is a recovery as far as economic activities and industrial activities are concerned. Immediately after Diwali and Chhath, our freight loading has been in the range of 4 million ton per day. So last 4 days, if I see the figures of last 4 days in November, it is more than 4 million ton per day, which indicates that freight is really picking up, and we are quite hopeful that in December it will be much more. I'll go to the next slide, and the next slide indicates that coal has been our major commodity for freight. Now in the month of November, though there is less coal loading, but still the overall loading is much more than previous year, which indicates that Indian Railway has been able to capture more commodities and the loading in various commodities. If you see these figures, except coal, all other commodities, they are doing very well and there is growth. So I just want to summarize that the growth in freight continues. In the month of November, we have done the highest loading in the current year, and as compared to last year also, it is 9. As compared to October 2020, previous month, the loading is more in spite of Diwali and Chhath festival, in spite of cyclone in Tamil Nadu. So freight growth continues. I'll move on to this slide indicates all the analysis which I have just mentioned about freight growth, and there are some more schemes we have launched. Stabling charges for the container trains have been waived off till 31st March 2021, and long lead discount for clinker traffic has been introduced, 20% over incremental NTKMs. Apart from the growth in freight loading, the revenue has also grown, and freight revenue of rupees almost around 450 crore more than the last year in the month of November. So not only the loading is growing, the freight revenue is also growing. These are some of the more highlights. That average wagon loading per day in November 20 has been 4.6% more than October 20. So we are continuously growing. Average loading per day in November 20 is 3.66 million ton as compared to 3.49 million ton in October 20. And as I mentioned, the last 4 days after the festivals, it has been in the range of 4 million ton. So we are expecting in the coming month, we will be doing 4 million ton per day. And as I mentioned earlier also, the loading in November 20 was affected due to festival holidays and cyclone Nivar. The last year, the festival holidays were in October, whereas this year, the festival is in November 20, and that is why this data of 9% growth in November and 15% growth in October is indicating. But that doesn't mean anything. Simply, I would like to say that freight is growing, and it's a very good sign for the industrial recovery. The next slide indicates that automobile momentum is continuing, and till November, the loading of automobile is even more than what we did last year, the entire year. Similarly, the Kisan Rail story is also growing,
and we have been able to run 8th Kisan Rail X Indore to New Guwahati on 24th of November. So now we have started getting demand for Kisan Rail from various corners of the country, and we are in touch with the state governments, and we will be running more and more Kisan Rail in coming months. As far as the passenger train services are concerned, we are running 908 special trains. Our total mail express trains pre-pandemic used to be around 1800. So as far as mail express trains are concerned, we are more than 50%. Similarly, Mumbai Suburban and Kolkata Suburban, they are also more than 50%. In addition to that, during festival period, we have run around 566 trains. And 20 special trains as clone trains have also been operated. As I have discussed earlier also, during this challenging period due to pandemic, we are making efforts to provide reserved accommodation to each and every one. And we are monitoring the waiting list on daily basis, and wherever there is a waiting list in a train, we are introducing clone train, and our objective is to ensure that if anyone wants to travel, he should be able to get a confirmed reservation. And that is the way we are planning in future also. Even post-pandemic, when we will start the regular train, we will maintain this system where we will be monitoring all the trains, and wherever there are waiting lists, we will be introducing clone train. Now, I just want to give you a macro picture. Out of 908 trains which we are running, 460 trains, they are having occupancy around 100%. Means these trains are having some waiting list. Now there are 400 trains where the occupancy is 50 to 100%. So 460 trains, they are having occupancy about 100%. 400 trains, they are having occupancy 50 to 100 trains. So I can say that around 860 trains, the occupancy is more than 50%, and 460 trains around 100%. Now still there are 48 trains where the occupancy is less than 50%, and out of that around 16 trains the occupancy is even less than 30%. So we are monitoring all those trains, and our objective is to see that each and every citizen of the country is able to get a reserved accommodation to perform his journey. And during this pandemic situation, we are in touch with the state governments, and we are running all these trains in consultation with the state government, and we are ensuring that all the necessary COVID protocols are followed. We have also instructed all our general managers that they should be in touch with state governments on a continuous basis, and wherever state government feels comfortable, Indian Railway will be running the passenger services also. For running the passenger services, short distance passenger services, only and only condition should be that we should be able to maintain social distancing. The trains are not. Indian Railway is coordinating with the state government, and wherever we are getting a request from the state government and the state government feels comfortable that on certain sector the passenger trains can be run while maintaining the social distancing and maintaining the other protocols, Indian Railway will gradually start running. So while Indian Railway is making its best effort to move towards the regular train services, but still the way we are still waiting pandemic situation to get stabilized, and whenever the corona situation gets stabilized, Indian Railway is making all preparations to bring normalcy in the train services. So just to summarize, I would like to just mention that Indian Railway is monitoring the waiting list status on daily basis. We are using artificial intelligence, and on daily basis
we are taking a decision, and wherever required, we are introducing trains so that each and every citizen of the country is able to travel. We have started running suburban trains in Mumbai, suburban trains in Kolkata, in collaboration with the state government, and we will be running short distance passenger trains also wherever state government feels comfortable that they will be able to monitor insurance of all these COVID protocols. So that is about the passenger train services. Now, private-public partnership in passenger train operations, as you know, that request for proposal document, which means the main bid document, has been invited for participation in passenger trains. The bids will be open on 29th of January. Bids will be open on 29th of January, and we will be finding 31st of March. Somewhere around March 21, we will be finalizing the contract, and it will take 2 years to introduce these trains with the private-public partnership. There are 13 firms which have been technically qualified to participate in this request for proposal document. There are 12 clusters, and in Chennai cluster there are 6 companies who have qualified. In Mumbai cluster there are 11 companies which have qualified, and in remaining cluster 8 to 10 companies they have qualified. And if you see, on an average there are 12 clusters and 103 requests for proposal documents have been issued after technical qualification. So if you see average participation of the companies is little more than 8, approximately 8 companies on an average they are participating in each cluster. Chennai is the lowest, that is 6 companies. Mumbai is highest, 11 companies, and in between 8 to 10 companies are participating in remaining clusters. So the response of the companies for this private-public partnership and passenger train operations have been very good, and we are hopeful that by 31st March we will be able to finalize these tenders. Mumbai-Ahmedabad high-speed rail project is one of our flagship projects, and as I have informed you earlier also, that land acquisition was going on, all the designs have been frozen, the alignment has been completed, the tender documents are ready, and in the linear project like railway project, we always wait for land is to be acquired in a longer stretch, and then only we invite tenders. And therefore, when 86% of the land in Gujarat was acquired and handed over to High Speed Rail Corporation, we decided to go ahead with the finalization of the contract, and High Speed Rail Corporation has finalized one of the biggest EPC contract in the history of this country. The one tender is approximately 25,000 crore, another tender is 7,000 crore. So we have finalized 2 tenders that covers 325 kilometers of high-speed network in Gujarat. The work will start in the month of December. The completion period for this tender is 4 years. Mumbai, the land acquisition is only 22%. We had a detailed discussion with Chief Secretary Maharashtra, and he has promised that within 4 months the land acquisition will reach up to the level of 80%, and once the land acquisition reaches more than 80%, High Speed Rail Corporation is ready with the tender documents and the tenders for
Maharashtra portion will also be finalized. So I just want to mention that high-speed Mumbai-Ahmedabad high-speed rail work has started. It's progressing well, and the the most important thing in this Mumbai-Ahmedabad high-speed rail project is that after a detailed discussion with Japanese authority, the content of local contract has been increased to 72%. Earlier, the MOU provided for 42% of contract to be invited from Indian companies, but after a detailed discussion, we have increased the local content to 72%, and this will help Indian Railway to also develop skilled manpower in the country itself, so that if Indian Railway decides to set up the new high-speed corridor, we will be having skilled manpower for our future projects. So I just want to summarize that Mumbai-Ahmedabad high-speed rail corridor work has started in right earnest. We have already awarded contract for 325 kilometers in Gujarat, and the work will start next month. In fact, today is 1st December, so work will start in this month only. I'll go to the next project. Next project is about dedicated freight corridor. I just want to inform you that this financial year has been very, very useful for this dedicated freight corridor project. And as you will see that Khurja to Bhawpur is basically Kanpur. So Khurja to Kanpur 353 kilometer is ready for commissioning. It will be commissioned in the month of December. Khurja is one of the busiest route of Indian Railway, and by the end of this month, this freight corridor will be available, and we will be diverting all our freight trains on this 353 kilometer Eastern dedicated freight corridor, and this will provide Indian Railway to run more and more freight trains on this sector. Similarly, Rewari Madar 306 kilometer is ready for commissioning. And what is important is that if you see Madar Palanpur 335 kilometer, that is also in advanced stage of completion, and it will be ready by March 2021. So by March 2021, Kanpur Khurja will be commissioned. Rewari Madar Palanpur will be commissioned, and by commissioning Rewari and Palanpur, we will be connecting 3 ports from Gujarat. So it will be a great achievement for dedicated freight corridor. This work has been a long time, but this financial year, last 1.5 years, has been very, very useful, and Indian Railway decided to start commissioning lines in phases. And this particular phase, Kanpur Khurja and Rewari Palanpur, is really going to give a lot of benefit, and we are expecting that there will be quantum jump in freight operation when these lines are commissioned. Now, if you see December 21 target, Khurja Dadri, we are targeting June 2021, and then Rewari Dadri is being targeted by December 2021. So by December 2021, we will be having a continuous stretch from Kanpur, Khurja, Dadri, Rewari, Palanpur. Almost 45% of the dedicated freight corridor will be ready, and we will start transporting goods from 3 ports of Gujarat. Beyond December 21, only the connection between, there are some issues related to land for which we have already discussed with the state government of Maharashtra, and there is a satisfactory progress as far as that land issue in Maharashtra is concerned, and we are hopeful that entire freight corridor will be completed by
June 2022. But again, I want to re-emphasize that this year has been very, very fruitful year for freight corridor. And the moment we commissioned Khurja Bhawpur by end of December, Rewari Madar by end of December, and Madar Palanpur by March 21. By March 21, we will be able to divert lot of freight trains on Kanpur Khurja section and Rewari Palanpur section, and by March 2021, there will be a quantum jump in the freight operation of Indian Railway. So that is a very, very positive development as far as freight corridor is concerned. Briefly, I just want to mention about these ongoing recruitments. As we had announced earlier, the exams will start from 15th of December. We have already notified the dates for the exams for isolated and ministerial categories, that is mainly stenos and teachers. The number of vacancies are 1663 and the applications are 1.03 lakh, and the computer based test has already been scheduled from 15th of December, which will end on 18th of December. And the next exam, non-technical popular category NTPC, where we recruit station master, guards, office clerks, commercial clerks. There the application is 1.26 crore. And that exam has also been scheduled from 28th December. In fact, we scheduled it after Christmas holiday. And this will be completed by the end of March. The agency is already in place. The arrangements have already been made. All the general managers have already been advised. And we are working on the details. This year, due to this corona situation, we are ensuring that the examination centers for the candidates are kept within their own state, and their travel time or their traveling distance is less. But still, we are working on it, and we are trying to ensure that the candidates will have to travel a very short distance. And for that short distance also, we have already started planning special trains. We will be running special trains for those candidates, and we will see that all the COVID protocol are followed. And once this is completed by the end of March, immediately after this exam, in the first week of April, we will start exams for level 1, that is track maintainers, pointsmen and various level 1 employees. Again, the number of applicants are 1.15 crore. That exam immediately will start after completing NTPC exam, and we will be completing this exam by June 21. So starting from 15th of December, all these 3 exams will be completed, and after that the recruitment process will be started. So thank you very much, and I'll be very happy to interact with you, take your questions. Thank you. Thank you, sir, for taking us through a series of development initiatives being taken by the railways, from the freight to the dedicated freight corridors and the recruitment thing and so many things. I'm sure many of the queries of the media would have automatically been addressed in your detailed address. You have always been very kind to give this kind of time, sir. Now I request Ravi Kant, ABP. Are you there, Ravi Kant? Ravi Kant ji, you there? Hello, Ravi Kant, you there? Next level DJ. Okay. Next is Arun Kumar Das. I can take Ravi Kant ji a question. Yes, sir, Arun Kumar here. Das ji, you there? Yes, I'm here, sir. Can you hear me? Yeah, kindly proceed. Good afternoon, Arun ji. Good afternoon. Good afternoon, sir. How are you, sir? बिल्कुल ठीक है. Thank you so much. Welcome. Sir, my question is, why this poor response to Vande Bharat bidding process? Only 3 people, party, that also include one Chinese, which is likely to be eliminated. Any particular reason you want to attribute? फिर से रिपीट करें जरा सा, आवाज समझ नहीं. सर, इनका प्रश्न है, व्हाट इज द रीजन फॉर पुअर रिस्पांस टू वंदे भारत बिडिंग? ये इनका प्रश्न है
केवल 3 फर्म्स ने आए हैं फाइनली, क्या कारण हो सकता है? ये इनके प्रश्न पूछना, इनका प्रश्न ये है। अरुण जी, ये डोमेस्टिक बिडिंग थी और इसमें हमने लोकल कंटेंट भी बढ़ा दिया था, 75% बढ़ा दिया था। और अगर आपको याद हो, इससे पहले भी जो एक बार बिड खुला था, ड्यू टू टेक्निकल रीजन उसको कैंसिल करना पड़ा था। उसमें भी 3 ही बिड आए थे। 2 बिड जो आए थे वो भी ठीक नहीं थे, यही 3 बिड्स आए थे। तो ये जो लोकल कंटेंट हमने और डोमेस्टिक बिडिंग की है, हम चाहते हैं कि आत्मनिर्भर भारत का जो विजन ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने दिया है, उस विजन को रेलवे पूरी तरह से फुलफिल करे, और उसको ध्यान में रखते हुए ये हमने बिडिंग की है। और इसमें 3 लोगों ने पार्टिसिपेट किया है। इसका टेक्निकल इवेल्युएशन किया जा रहा है और नॉर्मली ये 2 महीने में 15 जनवरी तक ये टेंडर फाइनल कर लिया जाएगा। Okay, sir. So that was Mr. Arun Kumar Das. I'll repeat रविकांत प्रश्न उनका ये था सर कि अच्छा, आप आ गए हैं, प्लीज प्रोसीड। रविकांत जी नमस्कार, जी बताएं। सर नमस्कार। सर हम ये नमस्कार। पूछ रहे थे कि पंजाब की जो स्थिति है अभी किसान आंदोलन के कारण, अभी रेलवे का क्या स्थिति है? सारी ट्रेनें चल रही हैं या बाधित हैं? और दूसरा ये कि दिल्ली में जो किसान बैठे हुए हैं बॉर्डर्स पे, उनकी वजह से क्या कोई दिक्कत आ रही है रेलवे को, और पैसेंजर्स की कोई प्रॉब्लम आ रही है, शिकायत? थैंक यू रवि जी। मैं ये कहना चाहता हूँ कि पंजाब में हमारी ट्रेनें पूरी तरह से चल रही हैं और वहाँ हमको कोई दिक्कत नहीं है इस समय। एक स्टेशन है जंडियाला, ये ब्यास और अमृतसर के बीच में है, और वहाँ पे अभी भी एक ग्रुप के लोग बैठे हुए हैं। तो वो जो 32 किलोमीटर का एक सेक्शन है, उस पर ट्रेन नहीं चल पा रही है। और ब्यास अमृतसर के बीच में एक हमारे पास डाइवर्टेड रूट अवेलेबल है, तो हम अमृतसर तक जो जा रहे हैं वो डाइवर्टेड रूट से जा रहे हैं। और ये बात सही है कि ब्यास अमृतसर का चूंकि जो रूट है, डबल लाइन रूट है, वो चूंकि बाधित है, और जो डाइवर्टेड रूट है वो हमारा सिंगल लाइन का रूट है। तो इसलिए उस सेक्शन में, अमृतसर के सेक्शन में पैसेंजर ट्रेनें कुछ हमें कम करनी पड़ी हैं। उस सेक्शन के अलावा बाकी सारे सेक्शन में हमारी ट्रेनें ठीक से चल रही हैं और कोई किसी तरह की समस्या नहीं है। मैं आपको अगर एक मैक्रो पिक्चर देना चाहूँ तो ये जो हमने ट्रेनें शुरू करी थी 23 तारीख से शुरू की थी, और अभी तक करीब 384 गुड्स ट्रेनें जा चुकी हैं पंजाब के अंदर, और हर जो है वो 373 ट्रेनें निकली हैं। और इसी तरह से एमटी रेक जो है वो 273 ट्रेनें पंजाब के अंदर गईं और 221 ट्रेनें बाहर निकली। कमोडिटी की अगर हम बात करें तो 23 तारीख से 30 तारीख के बीच में करीब 155 रेक कोल की अंदर पंजाब के अंदर गई है ट्रेन। फर्टिलाइजर की 58 ट्रेन पंजाब में गई है। ऐसी कंटेनर की 88 ट्रेनें, 88 ट्रेनें अंदर गईं, और एक्सपोर्ट के लिए करीब 70 ट्रेनें कंटेनर की बाहर आई हैं। फूड ग्रेन की करीब 245 ट्रेनें बाहर आई हैं। पैसेंजर ट्रेनें भी हमारी चल रही हैं, और अगर हम पैसेंजर ट्रेनों का एक मैक्रो पिक्चर दें आपको तो 23 से 30 के बीच में करीब 94 मेल एक्सप्रेस ट्रेनें अंदर गई हैं, पंजाब के अंदर गई हैं, और करीब 78 ट्रेन पंजाब से निकली है। तो एक जो जंडियाला जगह पे जो प्रॉब्लम है उसको छोड़ के, ब्यास से जो अमृतसर का एक 32 किलोमीटर का सेक्शन है उसको छोड़ के बाकी पूरे पंजाब में बहुत अच्छी तरह से ट्रेनें चल रही हैं। और जो भी कमोडिटीज की रिक्वायरमेंट है, चाहे कोल है, फर्टिलाइजर है, वो पंजाब के अंदर जा रहा है। POL है जो हमको जम्मू एंड कश्मीर में सप्लाई भेजनी थी, वो भी बिना किसी दिक्कत के जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। और जहां तक आपने कहा कि पैसेंजर्स को ट्रेन पकड़ने में, तो अभी इस तरह की कोई बात आई नहीं है। जो लोग दिल्ली से ट्रेन पकड़ रहे हैं उनको कोई दिक्कत हम लोगों की नोटिस में नहीं आया है। और जो ट्रेनें हमारी पंजाब के साइड से दिल्ली में आ रही हैं, वो ट्रेनें भी बिल्कुल बिना किसी दिक्कत के चल रही हैं। तो अभी तक हम लोगों की नोटिस में ऐसा कुछ नहीं आया है कि पैसेंजर्स को कोई दिक्कत है, लेकिन हम लोग इसको डेली बेसिस पे कंटिन्यूअसली मॉनिटर कर रहे हैं और ट्रेनें बिल्कुल ठीक से चल रही हैं। थैंक यू रवि। दीपक दास,
का नेक्स्ट क्वेश्चन है. दीपक, यू देयर? सर यस सर, यस सर. काइंडली प्रोसीड. सर सर मेरा एक क्वेश्चन था सर, ये जो वंदे भारत ट्रेन के लिए जो एप्लीकेशन आए हैं, जो बिड्स आए हैं, one was again by that CRRC. So what is the status of that? And secondly, will there be a reverse bidding, because now there are only 3 players, sir. ओके, थैंक यू वेरी मच. जैसा कि मैंने बताया कि वंदे भारत का टेंडर खुल गया है. इसका टेक्निकल इवेल्युएशन चल रहा है और टेक्निकल इवेल्युएशन होने के बाद इसके फाइनेंशियल बिड्स खुलेंगे और उसके बाद से ये फाइनलाइज होगा. 15 जनवरी तक ये टेंडर फाइनल करने की उम्मीद है. और जहां तक रिवर्स बिडिंग या नेगोशिएशंस, ये जो टेंडर कमेटी होती है उस सब नियमों को ध्यान में रखते हुए, और जब टेक्निकल बिड्स के रिजल्ट आएंगे, फाइनेंशियल बिड्स के रिजल्ट आएंगे, तो ये पूरा निर्णय लेने का जो एक अथॉरिटी है वो टेंडर कमेटी के ऊपर होती है और टेंडर कमेटी इसमें नियमों के हिसाब से एक अपना निर्णय लेगी. तो सर क्या 3 में भी हो सकता है? मतलब आई एम जस्ट ट्राइंग टू अंडरस्टैंड सर. ये इसके बारे में हम कुछ बता नहीं सकते हैं. इसके लिए बहुत ही वेल डिफाइंड रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं और 3 कंपनी अगर होती हैं वैलिड तो वो रिवर्स ऑक्शन होता है, नहीं तो नेगोशिएशन होता है. और ये टेंडर कमेटी इस पर निर्णय लेगी जब ये एक टेक्निकल इवैल्यूएशन कंप्लीट हो जाएगा. तो अभी कुछ भी कहना मेरे लिए प्री मेच्योर होगा. ये पूरी तरह से उनके अधिकार क्षेत्र में आता है, टेंडर कमेटी के अधिकार क्षेत्र में आता है और जो नियम है उनको ध्यान में रखते हुए वो लोग इस पे निर्णय लेंगे. थैंक यू सर. थैंक यू. थैंक यू दीपक. नेक्स्ट क्वेश्चन इज सिद्धार्थ. सिद्धार्थ, न्यूज स्टेशन, यू देयर? सिद्धार्थ जी, जी प्रोसीड. सर नमस्कार. नमस्कार सर, हमारे जो है एक सवाल का जवाब तो आपने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ही दे दिया एनटीपीसी एग्जाम को लेके. सवाल है मेरा कि 565 एलपी आरआरबी मुंबई से ज्वाइनिंग लेटर उनको मिल चुका है और 1 साल से ऊपर हो चुका है, ज्वाइनिंग नहीं मिली है. और इस तरीके की तमाम चीजें आ रही हैं सामने, क्योंकि हर जगह से एलपी को जो जिनको ज्वाइनिंग मिलनी थी वो सवाल आ रहे हैं कि उनको ज्वाइनिंग क्यों नहीं हो रही है. एक ये हमारा सवाल है. दूसरा सवाल है, पैसेंजर ट्रेनें फुल फ्लेज तरीके से कब चलेंगी? सिद्धार्थ जी, थैंक यू वेरी मच. थैंक यू वेरी मच. ये बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि ज्वाइनिंग डिले हो गई है, लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि सबको ज्वाइनिंग के ऑफर सबको दे दिए गए हैं. और इस कोरोना के समय में पहले भी मैंने बताया था कि ट्रेनिंग में दिक्कत आ रही थी. ट्रेनिंग जो इंस्टीट्यूट है उनकी लिमिटेड कैपेसिटीज है, उनको इस समय सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना है. तो पूरी तरह से जो महाप्रबंधक हैं इसको मॉनिटर कर रहे हैं और थोड़ा सा समय जरूर लगा है, लेकिन बहुत जल्दी सबकी ट्रेनिंग कंप्लीट की जाएगी और एक चरणबद्ध तरीके से सबका ट्रेनिंग शेड्यूल कंप्लीट बना दिया गया है और अगस्त 21 तक सबकी ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाएगी. चाहे कभी भी कोई ट्रेनिंग ज्वाइन करे, एक पूरा एक्शन प्लान बना के रखा गया है. और मैं आपके माध्यम से सबको बताना चाहता हूं 2 चीजें. पहली चीजें ये है कि सबको ज्वाइनिंग लेटर इशू कर दिए गए हैं, पहली चीज. और दूसरी चीज, सबके लिए ट्रेनिंग की व्यवस्था की जा रही है. क्योंकि एक्यूमुलेट हो गया कोरोना की वजह से, इतने दिनों से ट्रेनिंग हम बंद किए हुए थे, उसको शुरू किया है, तो थोड़ा समय लग रहा है. लेकिन सबके लिए एक पूरा एक्शन प्लान बना के और हमने ये निर्णय लिया है कि अगस्त 21 तक, अभी दिसंबर चल रहा है, अगस्त 21 तक सबकी ट्रेनिंग कंप्लीट कर दी जाएगी और एक चरणबद्ध तरीके से फेज्ड मैनर में सबको ट्रेनिंग ज्वाइन कराएंगे और सबकी ट्रेनिंग को अगस्त 21 तक कंप्लीट करेंगे. धन्यवाद. अच्छा, आपने दूसरा क्वेश्चन पूछा था पैसेंजर ट्रेनिंग कब से फुल फ्लेक्स रेगुलर कब चलाएंगे. सिद्धार्थ जी, ये बड़ा मुश्किल सवाल है. इस समय आप देख रहे हैं कि कोरोना का एक तरह से स्टेबलाइज नहीं हो पा रहा है और कई स्टेट में दिक्कतें आ रही हैं. तो ये इसके लिए एक समय बता पाना बड़ा मुश्किल है. लेकिन जैसा कि मैंने बोला कि धीरे धीरे हम लोग नॉर्मलसी की तरफ जा रहे हैं और करीब 1000, जैसा कि मैं बताया, 908 ट्रेनें हम चला चुके हैं. मेल एक्सप्रेस सबअर्बन ट्रेनें हमने शुरू कर दिया. हमने सारे महाप्रबंधक को ये निर्देश दिए हैं कि स्टेट गवर्नमेंट से मिलके और जहां भी स्टेट गवर्नमेंट
कंफर्टेबल महसूस करता है कोरोना का ध्यान में रखते हुए वहां पे पैसेंजर ट्रेनें भी चलाएं। तो हम धीरे धीरे नॉर्मलिटी की तरफ बढ़ रहे हैं, लेकिन ये पूरी तरह से कैसे नॉर्मल होगा ये पूरा कोरोना सिचुएशन में डिपेंड करता है, और इसके लिए आप एग्री करेंगे कि हमारे लिए समय एक बताना पहले से थोड़ा सा मुश्किल होगा। थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू सर। सर ये बड़ी अहम जानकारी आपने बताई है कि सबकी ट्रेनिंग अगस्त 21 तक हो जाएगी। दैट वाज वेरी इंपॉर्टेंट। हमारे सोशल मीडिया पे भाई सब लोग कमेंट्स आते रहते थे, तो मीडिया के जरिए सब इंफॉर्मेशन जा सकती है कि लोग हताश ना हो। थिंग्स आर मूविंग। सर अगला प्रश्न है ऋतुपर्णा, यू देयर? ऋतुपर्णा नाथ, यू देयर? या प्लीज प्रोसीड। Yeah, good afternoon, Ritu ji. Good afternoon. Good afternoon, sir. Sir, I wanted to ask one. There was one question about bullet train project which you have already clarified. But the other one is you had earlier mentioned about new dedicated freight corridors being identified. If I'm not wrong, there were 4 you had mentioned, and you had said viability studies are being conducted for which the reports will be December. So has Yes, Ritu, the feasibility study report is being conducted by Dedicated Freight Corridor Corporation of India Limited, and they have already invited tenders for consultancy work. The tenders are in the various stages of getting finalized, and it will take 1 year. Basically, by December 21, these feasibility reports will be ready, and what we are planning that we will go through model. And the entire plan is to see that before 2030, these freight corridors are set up. So right now, the feasibility study is to be started. It has not started. Tender process has started. Most of the tenders have already been opened, and they are in the process of getting it finalized. I am hopeful that in this month, by end of December, these consultants will be in place, and they will start the detailed feasibility study. And basically we are asking consultants to prepare the detailed project report. Detailed project report will be providing the alignment, the requirement of land, the traffic projections, and they will be working out the internal rate of return, financial internal rate of return, and economic internal rate of return. And based on these detailed project reports, then the sanctioning of the projects will be taken up. So basically what we are expecting by December 21, these detailed project reports will be ready, and somewhere in 2022, we should be able to finalize these projects and start bidding process for public-private partnership. So that is the timeline we are working on it. And I just want to mention that basically this National Rail Plan 2030, which we plan to release somewhere around 15th of December, that is almost ready. So this is part of National Rail Plan 2030, and I'll just like to briefly mention that National Rail Plan 2030 really envisages that what are the projects required to be completed by 2030, so that it can take care of the traffic requirements till 2050. And as an interim measure, part of this NRP 2030, we have already come out with the business document 2024. Document 2024 lists the projects which is required to be completed by 2024 in order to meet the traffic requirement till 2030. So basically, National Rail Plan 2030 is planned in 2 parts. One part is that we are targeting those works which is required to be completed by 2024 to take care of the traffic requirement by 2030. And the second part is those works which is required to be completed by 2030, which should take care of the requirements, traffic requirements till 2050. So these new freight corridors, this is the part of the second portion which is required to be completed by 2030, and we have taken this action of preparing the detailed project reports. So that is the way we are working on these new freight corridors. Thank you. Thank you, sir.
The next question is by Shreya. Shreya, you there? Hi, sir, I'm there. Yeah, please proceed. Hello, Shreya. Good afternoon, Shreya. Good afternoon, sir. How are you? Fine, thank you. Sir, so my question is that, so where are we as far as the corporatization of production units is concerned? Okay, What good is the question. status? Good question. Shreya, corporatization of production units, basically a detailed project report is being prepared by RITES, and they are working on it. And basically, as I have been mentioning earlier also, once this detailed project report is ready, we would like to discuss with our employees, and we will be discussing with the trade unions. So right now, the detailed project reports are getting finalized, and these documents will be ready. And once these documents are ready, we will be consulting our employees, and that consultation process can take 2 to 3 months, and then only we will be taking further action to corporatize these production units. So I can just mention that the project reports are getting ready. Thank you. So what is the broader target, what broader timeline for completion? You said that the consultation process will take 3 months, but what is the larger target in terms of time? Larger target somewhere between, I can say that around June, April to June. April to June, we should be working on with this project. But I just want to repeat again that once the documents are ready, detailed project documents are ready, we will be consulting our employees. We will be having a detailed consultation with trade unions, and based on the outcome of those discussions, we will be fine-tuning our document, and we will be ensuring that all the interests of employees are taken care of while taking any decision for the corporatization of these production units. All right, sir. Thank you. Thank you, Shreya. The next question is by Sharad Pandey, Dainik Bhaskar. You there, Sharad? जी सर नमस्कार. जी पूछिए. हेलो, आवाज आ रही है? आ रही. जी सर. सर मेरा सवाल था, जो रेलवे की एक पहल चल रही कि वेटिंग लिस्ट नहीं देंगे, कंफर्म टिकट देंगे. सर ये बहुत अच्छी पहल है, मुझे लगता है इससे सबको लाभ भी हो रहा है. बट सर एक दूसरी प्रॉब्लम ये भी आ रही है कि किसी को अर्जेंसी में जाना हो तो वेटिंग टिकट मिल रहा है, उससे वो जा नहीं सकता. सर ऐसी स्थितियों में सर क्या कुछ प्लानिंग चल रही है कि हम बीच के कुछ रास्ते निकाल सकें क्या? आगे काफी संख्या में लोग ऐसे होते हैं कि अर्जेंसी में जाना है और टिकट वेटिंग मिल रहा है उनका, तो कैसे जाए सर? सर क्या कुछ प्लानिंग है क्या इस तरह की सर कुछ? बहुत बहुत धन्यवाद. ये एक नई मुहिम रेलवे ने शुरू की है, और स्पेशली कोरोना के टाइम पे हम चाहते हैं कि सब लोग सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करके रिजर्व कंपार्टमेंट में जाएं. और जैसा कि हमने बताया आपको कि हम डेली बेसिस पे इसको मॉनिटर कर रहे हैं, और जहां भी वेटिंग लिस्ट बढ़ रही है, हम ये देख रहे हैं कि अगर 1-2 दिन के बाद का भी टिकट नहीं मिल रहा है या हफ्ते भर के बाद का टिकट नहीं मिल रहा है, तो हम एक नई ट्रेन इंट्रोड्यूस कर पाए. और सारे जो तत्काल कोटा है और सारे कोटा हमने ओपन कर दिए हैं. कुछ लोग तत्काल में भी टिकट ले सकते हैं, या 1-2 दिन अगर वेट करें तो उनको टिकट मिलेगा. और मैं आपको यही कहना चाहता हूं कि हमारा प्रयास यही है कि सबको हम कंफर्म रिजर्वेशन दें, और उसी तरफ ये प्रयास चल रहा है. और इसका पूरा ध्यान रख रहे हैं हम डेली बेसिस पे मॉनिटरिंग करके. और आपने ध्यान दिया होगा कि हम डेली बेसिस पे ट्रेनें इंट्रोड्यूस कर रहे हैं. जहां भी जरूरत पड़ रही है, 2 ट्रेन 4 ट्रेन, जहां से हमको रिक्वायरमेंट मिल रही है, जहां से हमको डेटा एनालिसिस करके पता चल रहा है कि यहाँ पे भीड़ बढ़ने की उम्मीद है या कुछ इस तरह का ट्रेंड आ रहा है, बुकिंग का ट्रेंड आ रहा है, तो वो करेंगे. और धीरे धीरे जैसे ये सिस्टम बन रहा है कि हम देखेंगे कि किसी को कोई दिक्कत नहीं आए और सबको एक तरह से हम कंफर्म्ड रिजर्वेशन दे पाए. थैंक यू. धन्यवाद सर. सर 2 प्रश्न जो काफी लास्ट 2-3 दिन से सर्कुलेट हो रहे थे और मीडिया में भी इस पर चर्चा चल रही थी, सर वो मैं पूछना चाहूंगा, और सबके जरिए आपके जरिए सर मैं चाहता हूँ इंडिया यूट्यूब चैनल से, कि सर ये जो स्पेशल ट्रेन चलती हैं इनका किराया ये है कि ज्यादा शायद रेलवे वसूलती है, जो कि हम कई बार क्लैरिफाई कर चुके हैं. और साथ में ये भी लिंक होके आ रहा है, अगर ऐसा हो रहा है तो साथ में बेडरोल क्यों नहीं दे रहे हैं और ब्लैंकेट क्यों नहीं दे रहे हैं, लोगों को परेशानी होता है. सर आप इन सबको रियली भी हेल्पफुल सर.
बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और मैं आप सब लोगों के माध्यम से ये बताना चाहता हूँ कि ये जो कोरोना का समय है ये सबके लिए बहुत चैलेंजिंग है, पूरे विश्व के लिए चैलेंजिंग है। और मैं आप सबके माध्यम से ये बताना चाहता हूँ कि इस समय में भारतीय रेल का उद्देश्य केवल और केवल ये है कि भारतीय जनता को हम एक ऐसी सुविधा दे सकें जो कोरोना के समय में उसको एक सुगम यात्रा करा सके। और हमारा कोई भी ऐसा कोई उद्देश्य नहीं है कि हम किसी यात्री से कहीं पे भी कोई ज्यादा पैसा लें। हम आपको ये बताना चाहते हैं कि जो इस समय हम ट्रेनें स्पेशल ट्रेन के नाम से चला रहे हैं उसका केवल ऑब्जेक्टिव ये है कि रेगुलर ट्रेन अभी हम चला नहीं सकते हैं क्योंकि उसके रेगुलर स्टॉपेजेस दे नहीं सकते हैं। स्टेट गवर्नमेंट्स को हर जगह कोविड प्रोटोकॉल को ध्यान में रखते हुए स्क्रीनिंग, थर्मल स्क्रीनिंग की व्यवस्था करनी होती है। उनको अगर कोई किसी में सिम्टम है तो कैसे उनको क्वारंटाइन कराएं, इसकी व्यवस्था करनी होती है। और जो भी हम इस समय ट्रेन चला रहे हैं स्टेट गवर्नमेंट से कंसल्ट करके कहाँ पे किस तरह की क्या सुविधा है, कहाँ पे किस तरह से कोरोना की क्या स्थिति है, जो कि एक डायनेमिक स्थिति है, उनको ध्यान में रखते हुए ये हम ट्रेनें चला रहे हैं। और आपके माध्यम से हम सबको ये बताना चाहते हैं कि ये ट्रेनें जो रेगुलर ट्रेन के बदले में स्पेशल ट्रेन चल रही है उसमें कोई भी अतिरिक्त भार, प्रभार या किराया कुछ भी नहीं वसूला जा रहा है। बिल्कुल रेगुलर ट्रेनों के किराए के हिसाब से चल रही है। तो आप इनको रेगुलर स्पेशल कह सकते हैं कि जो रेगुलर स्पेशल ट्रेन है उसका किराया बिल्कुल वही है जो पैंडेमिक से पहले था। एक तो ये बात हो गई। दूसरी बात, जो लिनेन की बात आ रही है, रेलवे के पास लिनेन अवेलेबल है, रेलवे के पास लॉन्ड्री अवेलेबल है, सब कुछ अवेलेबल है। हम चाहें तो लिनेन और ब्लैंकेट दे सकते हैं। लेकिन ये जो कोरोना का एक समय है इसमें आप कुछ भी कह लीजिए, अगर एक जगह पे सारी लिनेन धुलेंगे, लॉन्ड्री में धुलेंगे, जैसे भी होंगे, वो एक तरह से कोरोना के समय में उचित नहीं है। और केवल लोगों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए हमने लोगों से अनुरोध किया कि ये जो पैंडेमिक सिचुएशन चल रही है, कोरोना की सिचुएशन चल रही है, कृपया आप अपना लिनेन और बेडिंग साथ में लेके आए। और मुझे नहीं लगता कि इस कोरोना के समय में लोगों को अपना बेड और लिनेन साथ में लेके आने में कोई दिक्कत होनी चाहिए। ये उनके भले के लिए है। और जहां तक लिनेन और ब्लैंकेट, इसके पैसे की बात है, टिकट में कोई भी अलग से इसके लिए कोई प्रभार नहीं सम्मिलित था। ये 1999 में एक निर्णय लिया गया था और उसमें जो टिकट का चार्ज है, वो जो भी पैसेंजर एमेनिटीज होती हैं, सब कुछ होती है, उनको ध्यान में रखते हुए टिकट का चार्ज लिया गया है। और लिनेन और उसके लिए कोई न तो पहले पैसा लिया जाता था और न उसको फिर हटाने की कोई बात है। तो ये मैं आपके माध्यम से ये बताना चाहता हूँ कि बिल्कुल उसमें हम कोई ज्यादा पैसा ले रहे हैं। ये भी बात बिल्कुल निराधार है कि रेलवे कुछ पैसे बचाने के लिए लिनेन या ब्लैंकेट नहीं दे रही है। ये हमारा बिल्कुल उद्देश्य नहीं है। ये मैं आप लोगों के माध्यम से बताना चाहता हूँ। हमारा उद्देश्य केवल ये है कि इस समय जो कोरोना की स्थिति बनी हुई है, हमारे सारे यात्री सुरक्षित रहें। उनके स्वास्थ्य के बारे में हम जितना कुछ कर सकते हैं इस कोरोना के समय में कर रहे हैं। और इसी क्रम में जो हमारे एयर कंडीशन ट्रेन चल रही है उसमें हमने जो एयर चेंज होती है 1 घंटे में, जो एक मानदंड है हॉस्पिटल्स के लिए, उससे भी ज्यादा एयर चेंज हम कर रहे हैं। और जैसा कि समर और विंटर में जो टेम्परेचर मेंटेन होता है उसको ध्यान में रखते हुए हम टेम्परेचर मेंटेन कर रहे हैं। गर्मी के दिनों में जो टेम्परेचर मेंटेन किया जाता है वो 22 से 25 डिग्री मेंटेन किया जाता है, वो हम 25 डिग्री के आसपास कर रहे थे। विंटर में जो टेम्परेचर होता है वो थोड़े कम लेवल पे मेंटेन करते हैं। उसका कारण ये होता है कि जब भी ट्रेन रुके तो आप जब ट्रेन से बाहर निकले तो बहुत ज्यादा टेम्परेचर डिफरेंस नहीं होना चाहिए।
सो उस समय जो विंटर के टाइम में टेम्परेचर मेंटेन होता है वो 18 से 21 डिग्री मेंटेन किया जाता है, तो उसको हम 21 डिग्री के आसपास टेम्परेचर मेंटेन कर रहे हैं। तो ये जाहिर बात है कि अगर विंटर के समय में अगर आप यात्रा कर रहे हैं तो आपको बेडिंग की जरूरत पड़ेगी, और आपके माध्यम से हम सबसे अनुरोध करना चाहते हैं कि कृपया आप अपना बेडिंग, लिनेन या ब्लैंकेट साथ लेके आए। केवल आपके स्वास्थ्य के लिए रेलवे ऐसा कर रही है। ये किसी भी तरह से कभी ना सोचें आप लोग कि कोई रेलवे पैसे बचाने के लिए लिनेन नहीं दे रही है, ऐसा कुछ नहीं है। बिल्कुल आपके स्वास्थ्य के लिए दे रही है। ये मैं आपके माध्यम से सबको बताना चाहता हूं, सबसे अनुरोध करना चाहता हूं। रेलवे का पूरा प्रयास है कि इस चैलेंजिंग टाइम पे, कोरोना के टाइम पे, हम ज्यादा से ज्यादा लोगों के स्वास्थ्य का ध्यान रख सकें। हम ज्यादा से ज्यादा जो कोविड प्रोटोकॉल है उसको फॉलो करें। तो इन सबको ध्यान में रखते हुए हम लोग ये सर, एक अगला प्रश्न सर एक और है जो कि काफी लोग पूछते रहते थे सर। एक सेकंड सर, वो है कि जीरो बेस बजटिंग, ये जीरो बेस टाइम टेबल सर कब तक आने की संभावना है सर? एक मिनट। सॉरी सर, एक प्रश्न और है सर, एक प्रश्न और है कि जीरो बेस टाइम टेबल कब तक आएगा सर? कल कुछ कंफ्यूजन था सर। थैंक यू, सॉरी, किसी का इंपॉर्टेंट फोन कॉल आ गया था, लेना पड़ा था। ओके, वो जो क्वेश्चन का आंसर दे रहा था उसका एक पार्ट और रह गया, मैं जरा बता देता हूँ। उनके जो आपने पूछा था पहले कि जो स्पेशल ट्रेन चल रही है उसमें आप किराया ज्यादा ले रहे हैं क्या, तो वो मैं क्लियर कर रहा था कि रेगुलर स्पेशल ट्रेन जो है वो बिल्कुल रेगुलर ट्रेन के हिसाब से चल रही है। पहली चीज मैंने क्लेरिफाई किया। दूसरी चीज, जो लिनेन और ब्लैंकेट का मैंने क्लेरिफाई किया कि केवल और केवल स्वास्थ्य की वजह से लिनेन और ब्लैंकेट हम लोग नहीं दे रहे हैं, और मुझे जनता से अनुरोध करना है आपके माध्यम से कि अपना लिनेन और ब्लैंकेट लेके आए। और तीसरी चीज ये है कि जो फेस्टिवल स्पेशल चली थी, ये 2015 से एक निर्देश है, सर्कुलर है कि जितनी भी फेस्टिवल स्पेशल ट्रेन चलती हैं या कोई भी स्पेशल ट्रेन चलती है, अगर ज्यादा भीड़ हो तो उस भीड़ को क्लियर करने के लिए, एक्स्ट्रा रश को क्लियर करने के लिए, चाहे वो त्योहार हो या कोई भी किसी तरह के रिक्वायरमेंट हो, तो उसमें एक 2015 का निर्देश है, 2015 का सर्कुलर है, जिसमें कि डिफरेंट क्लासेज में कुछ एक्स्ट्रा सरचार्ज की व्यवस्था है। तो बिल्कुल वो व्यवस्था अभी भी लागू है। तो मैं आप लोगों से ये बस बताना चाहूंगा, आप लोगों के माध्यम से सबको बताना चाहूंगा कि जो स्पेशल ट्रेन चल रही हैं रेगुलर ट्रेनों के बदले में, भले ही उनका नाम स्पेशल ट्रेन हो, भले ही उनके आगे 0 नंबर लगा हो, लेकिन उसका जो फेयर है वो बिल्कुल रेगुलर ट्रेन के बराबर है, उसमें कोई एक्स्ट्रा सरचार्ज नहीं है। जो ट्रेनें फेस्टिवल स्पेशल है या एक्स्ट्रा रश क्लियर करने के लिए कोई स्पेशल ट्रेन चल रही है, तो 2015 का जो एक सर्कुलर है 5 साल पहले, वो सर्कुलर अभी भी मान्य है और उसके हिसाब से वो फेयर लग रहा है। और जो आपको मैंने बताया लिनेन का और ब्लैंकेट का, कि केवल और केवल स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए हम उसको कर रहे हैं। अब आपका जो सवाल था जीरो बेस्ड टाइम टेबल का, जीरो बेस्ड टाइम टेबल का जो इशू है, उसमें मैं आपको 2-3 चीजें क्लैरिफाई करना चाहता हूं, क्योंकि काफी चीजें मैं मीडिया में देखता रहता हूं। पहली चीज ये है कि 2 चीजें कही जाती हैं कि कुछ ट्रेनें बंद होने वाली हैं, कुछ स्टॉपेजेज बंद होने वाले हैं। जीरो बेस्ड टाइम टेबल का जो मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि ट्रेनों को हम इस तरह से रेशनलाइज करें
कि पूरे देश में अगर कोई पुअरली पैटर्नाइज्ड ट्रेन है तो उनको किसी दूसरे ट्रेन के साथ मर्ज करके और कुछ टाइमिंग ऐसा चेंज करके हम देखें कि वो ट्रेन भी पैटर्नाइज होने लगे और लोगों को किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो। और जहां पे वेटिंग लिस्ट है, जहां पे बहुत ज्यादा लोग जर्नी करना चाहते हैं और जर्नी नहीं कर पा रहे, वहां पे हम एडिशनल ट्रेन चलाएं। तो ट्रेनों के बारे में हम आपको एक चीज ये बताना चाहेंगे कि जब भी जीरो बेस्ड टाइम टेबल आएगा, ट्रेनों की संख्या पहले से ज्यादा होगी, कम नहीं होगी। हाँ, ट्रेनों को रेशनलाइज हम जरूर कर रहे हैं और रेशनलाइज करते समय ये बिल्कुल ध्यान रखा जाएगा कि किसी भी एरिया के किसी भी यात्री को कोई दिक्कत ना हो। और इस जीरो बेस्ड टाइम टेबल से जितनी भी हमारी ट्रेनें हैं, उनका जो ट्रांजिट टाइम है, ट्रेवल टाइम है, उसको हम काफी कम करने वाले हैं। आधे घंटे से लेके कुछ ट्रेनों का जो ट्रेवल टाइम है वो 5 घंटे 6 घंटे भी कम हो रहा है। जो लंबी दूरी की गाड़ियां हैं उनका टाइम 5 घंटे से 6 घंटे भी कम होने की उम्मीद है, जो प्लानिंग हो रही है। और मोस्टली जो ट्रेनें हैं उनको स्पीड अप करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन कहीं से ट्रेनों की संख्या कम नहीं होगी। ट्रेनों को इस तरह से रेशनलाइज करेंगे कि जो पुअरली पैटर्नाइज्ड ट्रेन है उनका पैटर्नाइजेशन, और जिन ट्रेनों में बहुत ज्यादा वेटिंग लिस्ट हो वहां पे वेटिंग लिस्ट को कम किया जाए। तो एक तो ये बताना चाहता हूं। दूसरा, बार बार कुछ मीडिया रिपोर्ट्स आती हैं कि स्टॉपेजेज हम हटा रहे हैं। स्टॉपेजेज का ये एक रेशनलाइज करने की कवायद की जा रही है, पूरी तरह से प्रोफेशनल तरीके से स्टडी किया जा रहा है कि जो पुअरली पैटर्नाइज्ड स्टॉपेजेज हैं और उस सेक्शन में ऑलरेडी बहुत सारी ट्रेनें रुक रही हैं, उनको कुछ इस तरह से रेशनलाइज किया जाए कि डिफरेंट जगहों पे जो डिफरेंट यात्री हैं उनको हर यात्री को उस सेक्शन में कोई ना कोई ट्रेन जरूर मिले चलने के लिए। और वो स्टॉपेजेज को रेशनलाइज करने का एक प्रोफेशनल तरीके से एनालिसिस किया जा रहा है। इस पे कोई भी निर्णय नहीं हुआ है, ये सब अभी एक प्रोफेशनल स्टडी का हिस्सा है और हमारे कुछ इंटरनल कम्युनिकेशंस होते हैं। मुझे लगता है इस पे कुछ एक तरह से अनकन्फर्म्ड रिपोर्ट्स आ जाती हैं। मेरा आप लोगों से अनुरोध है कि प्लीज इस तरह की रिपोर्ट्स ना दें जो अनकन्फर्म्ड है। एक बार जब हम लोगों की ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी तो हम खुद आपके सामने आके आपको सारे इसके डिटेल्स बताएंगे और इसकी सारे जो भी इससे फायदे होने वाले हैं, इसके फीचर्स हैं, हम खुद आपके साथ शेयर करेंगे। वो हमारा एक तरह से फाइनलाइजेशन की तरफ बढ़ रहा है आगे, और जैसे ये फाइनल होता है हम आपके सामने लेके आएंगे। जहां तक जीरो बेस्ड टाइम टेबल को कब से लागू करने की बात है, वो भी अभी निर्णय इसलिए नहीं हुआ है कि जीरो बेस्ड टाइम टेबल को लागू हम तभी करेंगे जब नॉर्मल तरीके से सारी ट्रेनें चलने लगे, या एक निर्णय हम लें कि फेज्ड मैनर में उसको इम्प्लीमेंट करें। तो वो निर्णय भी जब होगा तो सबसे पहले हम आपको आके बताएंगे। जब भी हमको इसको इम्प्लीमेंट करना होगा, पहले हम आपके माध्यम से सबको बता के एक एडवांस सफिशिएंट टाइम की नोटिस देके तभी उस ट्रेन टाइम टेबल को हम लागू करेंगे। तो मेरा आप सबसे अनुरोध है कि जीरो बेस्ड टाइम टेबल जो भारतीय रेल इस पे काम कर रही है, उसका केवल मकसद यही है कि जो हमारे पैसेंजर ट्रेनें हैं उनको रेशनलाइज करके हम अपने यात्रियों को ज़्यादा से ज़्यादा सुविधा दे पाएं। जो हमारी फ्रेट ट्रेन्स हैं उनको हम स्पीड अप कर पाएं, और जो फ्रेट का हमारा मॉडल शेयर है उसको हम बढ़ाएं। तो पहली बार भारतीय रेल ने एक इंटीग्रेटेड मैनर में, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का काम हो, चाहे वो टाइम टेबलिंग का काम हो, चाहे वो टेक्नोलॉजी इंडक्शन का काम हो, मॉडर्नाइजेशन का काम हो, एक इंटीग्रेटेड वे में ये काम शुरू किया है। और 2024 तक के लिए एक विजन डॉक्यूमेंट इशू किया है, जिसमें कि सारे प्रोजेक्ट्स इंक्लूड किए गए हैं कि 2024 तक कैसे कैसे प्रोजेक्ट कंप्लीट करके, और जो हमारा एक ओवरऑल ऑब्जेक्टिव ये है कि फ्रेट का मॉडल शेयर बढ़ाएं और पैसेंजर्स की जो ट्रेन है उसकी संख्या बढ़ाएं, और इस तरह से बढ़ाएं कि वेटिंग लिस्ट को कम करें। जिनको भी यात्रा करनी है उनको हम ट्रेन की सुविधा प्रदान कर पाए।
तो इन सब को ध्यान में रखते हुए कर रहे हैं। तो जीरो बेस के बारे में मैं यही समराइज करूंगा कि अभी कोई निर्णय नहीं हुआ है, अभी इस पे हम लोग काम कर रहे हैं और जैसे ही ये काम पूरा होगा सबसे पहले हम आपके माध्यम से सबको बताएंगे और एक एडवांस नोटिस देके ही जीरो बेस टाइम टेबल को लागू करेंगे। Thank you. Many thanks, sir. And I thank all my dear media colleagues for staying with us. Sir ने almost सवा घंटे तक हमारे साथ थे. And they've all possible questions could have been answered and given. सर मेरा एक क्वेश्चन था सर। नहीं, कौन बोल रहे हैं? बताइए ले लीजिए। सर संतोष ठाकुर बोल रहा हूँ। हाँ संतोष जी बताइए। नमस्कार सर। नमस्कार सर। मैं तो एक ही सवाल सर हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूछता हूँ, इसमें भी पूछ रहा हूँ। ये सर जो हम लोगों का कंसेशन पास है सर, ये कब से लागू होगा सर? अच्छा ठीक है। ये कंसेशन पास का ये आपका एक ऐसा क्वेश्चन है कि इसका जवाब हम नहीं दे पा रहे हैं क्योंकि इसके लिए समय सीमा अभी तय नहीं करी है। हम रेगुलर ट्रेन का वेट कर रहे हैं और आपको बताएंगे फिर इसका जवाब। एक बार समय सीमा तय कर लें। और ये मैं बस आपको पहले भी बताया था, अभी भी बता रहा हूँ कि ये कंसेशन केवल आपका ही नहीं रुका हुआ है। पैंडेमिक टाइम पे उस समय हम लोगों को एक निर्णय लिया था कि केवल जो पेशेंट्स हैं और जो स्टूडेंट्स हैं उनको छोड़ के सारे कंसेशन हमने बंद किए थे और एक ये निर्णय लेंगे। संतोष जी एक निर्णय लेके आपको बताएंगे हम। सर लेकिन जर्नलिस्ट काम से बहुत जाना पड़ रहा है उनको सर। हाँ आना जाना पड़ रहा है। कोरोना टाइम में आप लोग चल रहे हैं इस समय? हाँ बिल्कुल सर, कवरेज के लिए तो जा ही रहे हैं ना सर। अच्छा कवरेज के लिए जा रहे हैं कोरोना टाइम में। ठीक है संतोष जी मैं बताऊंगा आपको फिर। सर मेरा एक प्रश्न है, अगर आप उत्तर दें तो। थैंक यू एवरीवन। हेलो मेरा नाम और जी बताइए आप कुछ मैं कुछ पूछना चाहता हूँ। जी बताइए ना। जी मैं सचिन बुधौलिया हूँ, मैं यूनिवार्ता से हूँ। मेरा सवाल था डीएफसी को लेकर के, जैसे आपने बताया कि मार्च 21 तक जो है वो आप यहाँ मदार तक का रेवाड़ी से मदार वाला खंड खोल देंगे और खुर्जा से कानपुर वाला खंड खोल देंगे। फिर बाद में जब कनेक्ट हो जाएगा, इसका ओवरऑल इम्पैक्ट आप कैसे मान रहे हैं? कितना मालगाड़ी का जो गुड्स का मूवमेंट है ये कितना शिफ्ट हो जाएगा? एक मेरा सवाल था। दूसरा सवाल था हमारा पैसेंजर ट्रेन को लेकर के, जो रूरल स्टेशन पर रुकती हैं, उसका एक कोई डिसीजन हुआ है कि उनको एक्सप्रेस ट्रेन में बदला जाएगा, तो उसके बारे में थोड़ा बता दीजिए कि क्या पूरे देश की सारी पैसेंजर ट्रेन बदली जा रही हैं या कुछ बदली जा रही हैं? और दूसरा उसका जो रूरल पॉपुलेशन है, जो गरीब लोग हैं, उनके ऊपर एक इम्पैक्ट पड़ता है फाइनेंशियली, तो उसके बारे में थोड़ा बताइए कि क्या व्यू है आपका। थैंक यू। चलिए थैंक यू वेरी मच सचिन जी। आपने बड़े अच्छे दोनों प्रश्न किए और मैं बताता हूँ। जहाँ तक डीएफसी की बात है, मार्च 21 तक रेवाड़ी पालनपुर कमीशन हो जाएगा। रेवाड़ी मदार दिसंबर में हो रहा है, रेवाड़ी पालनपुर मार्च में हो रहा है और कानपुर खुर्जा दिसंबर में हो जाएगा। कानपुर खुर्जा सबसे ज्यादा बिजी रूट है हमारा। कानपुर खुर्जा में बॉटलनेक होने की वजह से जो कलकत्ता की तरफ ट्रैफिक जाता है उसकी प्रॉब्लम थी। तो कानपुर खुर्जा कमीशन होने से इस रूट पे बहुत ज्यादा सहूलियत मिलेगी। और जो आपने कहा कि परसेंटेज कितनी ट्रेनें शिफ्ट हो जाएंगी, उसका एग्जैक्ट नंबर तो मैं नहीं दे सकता, लेकिन मैं आपको बता ये रहा हूं कि अभी से हमने पूरी बिजनेस डेवलपमेंट एक्टिविटीज इस एरिया में शुरू कर दिया है और कानपुर खुर्जा रूट पे भी और रेवाड़ी पालनपुर रूट पे भी जो हमारे डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के नए स्टेशन आ रहे हैं उस पर अभी से गुड सेट शुरू हो गई है। और हमारी कोशिश यही है, जो इनिशियल एक अनुमान लगाया गया है कि मार्च 21 में जब ये हो जाएगा तो अभी जैसे 1210 मिलियन टन का हमारा पिछली बार जो वो था, कम से कम 25% और 300-350 मिलियन टन और इसके आने के बाद हमें लोडिंग का फायदा मिल सकता है, जिसपे कि हमारी पूरी तैयारी चल रही है डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का। तो एक ये डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का जब निर्माण हो रहा है उसमें एक ये बहुत बड़ा एडवांटेज इस वित्तीय वर्ष में हमको मिलने जा रहा है, जबकि हम गुजरात के 3 पोर्ट से सामान लेके सीधे रेवाड़ी आ जाएंगे और इधर कानपुर खुर्जा हमारा पूरा डीकंजेस्ट हो जाएगा। और उसके बाद सेकेंड फेज में जब ये खुर्जा से रेवाड़ी कनेक्ट हो जाएगा
तो ये पूरा एक तरह से ईस्टर्न सेक्टर से और पालनपुर के तीनों पोर्ट तक हमारा गुड्स मूव होने लगेगा। तो कोई भी बड़ा प्रोजेक्ट, मेगा प्रोजेक्ट होता है तो उसको हमेशा फेज्ड वे में ही कमीशनिंग करते हैं, और एक ये बहुत बड़ा माइलस्टोन इस फाइनेंशियल ईयर में हम अचीव करने जा रहे हैं। ये चीज मैं आपको बता रहा था डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के बाद। अब जब आपकी बात आई पैसेंजर ट्रेन को मेल एक्सप्रेस में कन्वर्ट करने की, तो मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं बिल्कुल क्लियरली कि ऐसा कुछ नहीं है कि सारी मेल एक्सप्रेस में कन्वर्ट हो जाएंगी। ऐसा बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है कि पैसेंजर ट्रेनें मेल एक्सप्रेस में कन्वर्ट हो जाएंगी। जैसा कि हमने बताया कि जो विलेज के स्टेशन हैं उनको सुविधा देनी हमारी प्राथमिकता है, लेकिन हम ये चाहते हैं कि जो हमारे रूरल एरिया में लोग रह रहे हैं और जो शॉर्ट डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हैं उनको भी ट्रेवल टाइम कम किया जाए। तो जो हमारी प्लानिंग ये है कि जो पैसेंजर ट्रेन हो उसको फेज्ड मैनर में पूरी तरह से मेमू में कन्वर्ट करें। इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन पूरा बन हो रहा है। आपने देखा होगा कि पिछले 6 सालों में 18,000 से ज्यादा किलोमीटर इलेक्ट्रीफाई हो गया। दिसंबर 23 तक हमारा पूरा इलेक्ट्रिफिकेशन हो जाएगा। तो जितनी भी पैसेंजर ट्रेनें हैं जो लोकल उस पर चलती हैं शॉर्ट डिस्टेंस पे, उन सबको हम मेमू में लेके जाएंगे। मेमू में लेके जाने का फायदा ये है कि उनका एक्सीलरेशन डिक्सीलरेशन बहुत अच्छा होता है, बहुत जल्दी स्पीड पिकअप करती हैं, उनको रिवर्स करने का कोई टाइम नहीं लगता है। तो जो पैसेंजर ट्रेन है उनके भी जो ट्रेवल टाइम है उसको भी हम कम करने वाले हैं। और कुछ पैसेंजर ट्रेन ऐसी हैं जिनको हम मेल एक्सप्रेस में कन्वर्ट करना चाहते हैं ट्रेवल टाइम कम करने के लिए। उसमें भी रूरल पॉपुलेशन ही ट्रेवल करती है, रूरल पॉपुलेशन भी कुछ लॉन्गर डिस्टेंस के लिए जाती है। तो हम चाहते हैं कि उनको भी कम समय में लॉन्गर डिस्टेंस लेके जाएं, और ऐसा करते समय पूरा ध्यान रखेंगे जैसा कि आपको मैंने बताया कि किसी भी सेक्शन में ऐसा नहीं होगा, किसी भी स्टेशन पे ऐसा नहीं होगा कि वहां पे कोई भी ट्रेन ना रुके। ऐसा नहीं हो सकता। हम बिल्कुल ध्यान में रखेंगे कि हर यात्री को, चाहे वो विलेज स्टेशन पे हो चाहे वो सिटी स्टेशन पे हो, हर सेक्शन में उसको एक ट्रेन मिले। और इन सबको ध्यान में रखते हुए आप एग्री करेंगे कि पिछले कुछ 2-3 सालों में जो एक इंटीग्रेटेड तरीके से हम प्लानिंग कर रहे हैं, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर का हो, चाहे मॉडर्नाइजेशन का हो, चाहे टाइम टेबलिंग का हो, इसका पूरा मकसद यही है कि हम सबको, रूरल पॉपुलेशन को, जो लोग मेट्रो सिटी में रह रहे हैं उनको, सबको एक हम अच्छी सुविधा दे पाए, सबको एक जो ट्रेवल है वो हम कम समय में पूरा करें, अच्छी एमेनिटीज दें। और इसीलिए एक इंटीग्रेटेड वे में आप देखा होगा आपने कि हम पैसेंजर ट्रेनों को मेमू में कन्वर्ट कर रहे हैं। जो लॉन्ग डिस्टेंस पैसेंजर ट्रेन है, आपको ध्यान होगा कि कुछ लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेन है 10-10, 12-12 घंटे तक चलती हैं, उसमें लोगों को चलने में दिक्कत होती है। तो जो लॉन्ग डिस्टेंस पैसेंजर ट्रेन है उसको मेल एक्सप्रेस में कन्वर्ट करेंगे, लेकिन उस एरिया के जो पैसेंजर ट्रेन है उसमें हम मेमू ट्रेनें चलाएंगे सो दैट कि किसी को कोई दिक्कत नहीं आए। तो आप बिल्कुल आपके फेयर स्ट्रक्चर भी सर चेंज करेंगे उसका? जी, फेयर स्ट्रक्चर भी सर चेंज होगा। जैसे मान लीजिए मेमू ट्रेन में आप कन्वर्ट करेंगे तो क्या फेयर स्ट्रक्चर पैसेंजर ट्रेन वाला हटा करके आप मेमू का जो फेयर होता है वो पैसेंजर ट्रेन का ही होता है। मेमू का फेयर स्ट्रक्चर पैसेंजर का ही होता है। और फिर मैं आपके माध्यम से कहता हूं कि हमारा उद्देश्य केवल यही है कि लोगों को अच्छी से अच्छी सुविधा दें, अच्छी से अच्छी सुविधा देना ही हमारा उद्देश्य है। तो ये मैं आपके माध्यम से मैं दोबारा एक बार समराइज करता हूं कि जीरो बेस्ड टाइम टेबल पे आप लोग निश्चिंत रहें। ये एक लंबा काम है, आप एग्री करेंगे कि इतने साल पुराने टाइम टेबल को बदल के और हम लोग काम कर रहे हैं, ये प्रोफेशनल काम है। हमारे आईआईटी मुंबई के लोग हमको सहायता कर रहे हैं। तो जो एक अनकन्फर्म्ड रिपोर्ट्स हैं उसके ऊपर आप प्लीज कोई रिपोर्टिंग ना करें। हम आपको बिल्कुल हर चीज बताएंगे और एडवांस नोटिस देके ही जीरो बेस्ड टाइम टेबल जारी रखेंगे। ऐसा नहीं है कि बिना आपको बताए हम टाइम टेबल जारी कर देंगे। एक बार हम पहले तैयारी कर लें, हमारा पूरी तरह से तैयार हो जाए। आपको पता है कि जब कोई इस तरह की तैयारी होती है तो उसमें कई परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन, कई ऑप्शंस वर्कआउट किए जाते हैं।
अब उन ऑप्शंस को अगर आप अनकन्फर्म्ड इंफॉर्मेशन को अगर आप यूज करके रिपोर्टिंग करेंगे तो थोड़ा सा अच्छा नहीं है। मेरा आप सबसे अनुरोध है कि प्लीज हमारी मदद करें, और एक बहुत बड़ा काम हम लोग कर रहे हैं, उस काम को करने में मदद करें। धन्यवाद। Thank you everyone. We would like to close the session today. Thank you sir for even taking questions beyond the normal expected hours and informed questions. बहुत बढ़िया। Thank you, thanks a ton. Thank you। हम तो अपने मीडिया के सभी भाई बहनों का जो है शुक्रिया अदा करते हैं कि आप लोग बिल्कुल कम समय में मेरे साथ जुड़ जाते हैं, और बिल्कुल आप लोगों के साथ बात करके मुझे बहुत खुशी होती है। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। Many thanks everyone. Thank you sir. Thank you. Good day. इसमें सेल्फ नहीं लिखना है।